بیوٹی اینڈ دا بیسٹ. ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت دور ایک جگہ ایک دولت مند تاجر اپنی 3 خوبصورت بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا. ان میں سے تیسری والی زیادہ خوبصورت تھی اور باقیوں سے زیادہ عقل مند بھی تھی، تو ہر کوئی اسے بیوٹی کہتا تھا. دوسری طرف اس کی بہنیں کمینگی اور حسد رکھتی تھی. وہ اپنے باپ کی دولت کو خرچ کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی. بیوٹی ایک خوبصورت شہزادے کا خواب دیکھا کرتی تھی. وہ ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ وہ ایک دن شہزادے سے شادی کرے گی اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں رہے گی. بیوٹی کی زندگی میں اس کے خوابوں کی طرح سب کچھ ہی خوش تھا، اور ایک دن اس کی قسمت بدل گئی. ایک برے طوفان کی وجہ سے اس کے باپ کے تمام جہاز کھو گئے اور ساتھ ہی اس کی دولت بھی. سب کچھ ختم ہو گیا پیارو، اب ہم امیر نہیں رہے. فکر مت کریں ابو، سب جلد ٹھیک ہو جائے گا. ہم کوئی راستہ ڈھونڈ نکالیں گے. آپ میری واحد دولت ہے، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں. تاجر کی غربت کی وجہ سے تمام نوکر گھر کو چھوڑ کر چلے گئے. بیوٹی اب گھر کو چلا رہی تھی، جبکہ اس کی 2 بہنیں غربت کے بارے میں صرف شکایت کر رہی تھیں. بیوٹی نے ہمیشہ سے خدا سے دعا مانگی کہ اس کے والد کی چہرے کی مسکان لوٹ آئے. اور ایک دن تاجر کو یہ خبر ملی کہ اس کے جہازوں میں سے ایک جہاز بندرگاہ جا پہنچا ہے. میرے پاس خوشخبری ہے، میرا ایک جہاز بندرگاہ کی طرف جا پہنچا ہے. اب ہم غریب نہیں رہیں گے. مجھے ابھی کے ابھی بندرگاہ کی طرف جانا ہے. بتاؤ میں تم میں سے ہر ایک کے لیے کیا لے کر آؤں؟ مجھے نئے کپڑے چاہیے. مجھے زیور چاہیے. اور میں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں میری پیاری بچی؟ مجھے صرف آپ کی باحفاظت واپسی چاہیے ابو. تم کتنی پیاری ہو، مگر تمہیں جو کچھ بھی چاہیے تمہیں مانگ لینا چاہیے بچے. لال گلاب، مہربانی کر کے مجھے ایک لا دیں. ہاں ضرور میری پیاری بچی. اس خوشی کی بات پر تاجر بندرگاہ کی طرف چل پڑا. جیسے ہی وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ جہاز مکمل طور پر تنہا ہے اور اس کا تمام عملہ سامان لے کر بھاگ چکا ہے. تاجر ٹوٹے دل کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل پڑا. خیالوں میں گم تاجر راستے سے بھٹک گیا اور ایک گھنے جنگل میں گم ہو گیا. برف ایسے گر رہی تھی جیسے سمندر کا سارا پانی برف بن گیا ہو. گھوڑا اس گاڑی برف میں مزید نہیں چل پا رہا تھا، تو اس نے اس کو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے دیا. کچھ فاصلے پر اس نے چمکتی ہوئی روشنیاں دیکھی اور ان کے پاس چلا گیا. یہ ایک بہت بڑا خوبصورت محل تھا. جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو سونے کا بنا ہوا ایک دروازہ خود بخود کھل گیا. یہ بہت عجیب بات لگی کہ کوئی بھی برف وہاں مالٹے کے درختوں کے اوپر نہیں پڑی ہوئی تھی. واہ کیا خوبصورت جگہ ہے یہ. مجھے محل میں داخل ہو کر محل کے بادشاہ سے ملنا چاہیے. تاجر ایک بڑے کمرے تک جا پہنچا. تاجر نے انتظار کیا اور ادھر ادھر دیکھا کہ وہاں کوئی آئے، مگر ایک طویل انتظار کے بعد وہاں کوئی نہیں آیا. ہیلو، ارے کوئی محل میں ہے بھائی؟ ہیلو. وہاں ایک کھانے کی میز تھی جس پر پھلوں اور کیکس کا تازہ کھانا پڑا ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ مجھے خود سے کھا لینا چاہیے. میں اس میزبان کا بعد میں شکریہ ادا کروں گا، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو. اس نے یہ کھانا ختم کرنے میں کوئی وقت نہیں لگایا. جب اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور پہلا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمرے میں ایک صاف ستھرا بستر لگا ہوا ہے. یا میرے خدا، ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ خوش قسمتی کا حقدار تھا. تاجر نے ایک نئی روشن صبح اپنی آنکھیں کھولی. اس نے کپڑوں کا ایک جوڑا اپنے پاس تیار پایا. اس نے خود کو تیار کیا اور نیچے بڑے کمرے میں چلا گیا. میز پر ناشتہ تیار تھا، دودھ، تازہ پھلوں کا رس اور بریڈز. اس نے پیٹ بھر کے کھایا اور پھر اٹھا. اوہ ہیلو، کوئی وہاں ہے بھائی؟ آپ کی میزبانی کا شکریہ، آپ بہت سخی ہیں. میں اب جا رہا ہوں.
अलविदा। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा तो उसने इतने ढेरों गुलाब देखे कि जितनी उसकी निगाह देख सकती थी। ओ, लाल गुलाब। अच्छा, मैं इसे अपनी प्यारी के लिए लेकर जा सकता हूँ। वो फौरन बाग में चला गया और उसने एक गुलाब तोड़ा। जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, उसके पीछे से एक ऊंची गुर्राने की आवाज आई। जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो उसने एक दराज कद दरिंदे को देखा, जिसकी खूनी लाल आंखें और दांत और पंजे छुरी की तरह तेज थे। तुम्हें किसने कहा कि मेरे गुलाब इकट्ठे करो? क्या ये काफी न था कि मैंने अपने महल में तुम्हें पनाह दी? क्या तुम अपने तशक्कुर का इजहार इस तरह से करते हो? तुम्हारी गुस्ताखी की तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मेरे मेहरबान आका। मैंने तो सोचा था कि मेरे सखी मालिक, जिन्होंने मुझे खाना खिलाया और रहने की जगह दी जरूरत के वक्त, वो बुरा नहीं मनाएंगे अगर मैं अपनी बच्ची के लिए गुलाब तोड़ कर ले जाऊं। माफ कर दीजिए मेरे मालिक। बेटी, अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है फिर, जो तुम्हारी जान बचा सकती है। वो क्या है मेरे मालिक? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी 3 लड़कियां हैं और वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। 3 बेटियां? अच्छा ठीक है, तुम अपनी बेटियों में से एक को इस महल में ले आओ। मैं उसे रख लूंगा और बदले में तुम्हारी आजादी अता कर दी जाएगी। मैं वादा करता हूँ, मुझे यकीन है कि उनमें से कोई एक यकीनन आपके पास आएगी। बहुत खूब, मैं तुम्हें अपने सबसे तेज तरार घोड़ों में से एक देता हूँ और तुम्हें 1 महीना देता हूँ यहाँ वापस लौटने के लिए अपनी बेटी के साथ। अगर वो आती है तो उसे अपनी रजामंदी से आना होगा और कोई ऐसी शर्त नहीं जिसपे मुझे उसे हासिल करना है। अगर तुम 1 महीने बाद नजर नहीं आते तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगा। अब रुखसत हो जाओ और अपनी बेटी के लिए एक गुलाब लेते जाओ। हालांकि उसने उसकी पेशकश इब्तदाई तौर पर अपनी जान बचाने के लिए कबूल की, मगर वो ये नहीं सोच पाया कि क्या उसकी बेटियों में से कोई यहाँ आने के लिए रजामंद हो पाएगी। बेचारा ताजिर जिंदा से ज्यादा मरा हुआ वापस चला गया। उसका घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा और ताजिर के घर तक फौरन पहुंच गया। उसकी बेटियां उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी। ओ अब्बू, मुझे मेरा तोहफा दे दें। मेरा तोहफा कहाँ है अब्बू? आप कैसे हैं अब्बू? आप बहुत थक गए होंगे। ये है जो तुमने लाने को बोला था और तुम नहीं जानती कि इसके लिए क्या कीमत देना पड़ी है। उसने उन्हें अपने जहाजों और दरिंदे के बारे में बताया। हाँ, ये तुम्हारा कसूर है। तुमने इनको क्यों कहा कि फूल लेकर आएं? जी हाँ, अगर तुमने कुछ समझदार चीज मांगी होती तो आज ऐसा कभी ना होता। यकीनन मैं ही इस बदकिस्मती का बाइस बनी हूँ, लिहाजा मैं अब्बू के साथ वापस जाऊंगी उनका वादा पूरा करने के लिए। ओ ब्यूटी, माफी दे दो प्यारी, ये बुरा नसीब मैं तुम तक ले आया। जैसा कि मैंने वो काम किया है, इसलिए बात सही है कि मैं ही इसकी तकलीफ सहूं। ब्यूटी अपने फैसले पर कायम थी। उसने अपने वालिद की हौसला अफजाई की। वापस घर चली जाओ ब्यूटी, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस सूरत-ए-हाल का सामना करने के लिए मेरे पास हिम्मत है। जब वो बात कर ही रहे थे तो रात हो गई और उनकी हैरानगी के लिए तमाम जंगल ऐसे जगमगा रहा था जैसे पूरी कायनात उसका इस्तकबाल करने आ गई हो। वाह, ये तो कमाल है। जल्द ही वो माल्टे के दरख्तों वाली सड़क पर जा पहुंचे और उन्होंने देखा कि महल शानदार तरीके से जगमगा रहा है। जब वो बड़े कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक शानदार आग भड़क रही है और खाने का मेज मजेदार खानों से भरा हुआ है। वो तवील सफर के बाद बहुत भूखे थे तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने खाना मुकम्मल ही किया था कि उन्हें दरिंदे के कदमों की चाप सुनाई दी। हाँ। शाम बखैर ब्यूटी। शाम बखैर जहाँपना। तो क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? जी। क्या तुम इधर रुकोगी जब तुम्हारे वालिद चले जाएंगे? जी। वापस जाओ घोड़े के पास। तुम्हें वहाँ एक और घोड़ा मिलेगा जो सोने से भरी पेटियों से लदा हुआ होगा, जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटियों के लिए है। अलविदा ब्यूटी, मैं तुम्हें हर रोज याद करूंगा प्यारी। मैं आपको याद करूंगी अब्बू।
घोड़े रवाना हो गए और एक लम्हे में फासले पर गायब हो गए। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली जाओ, कुछ आराम करो। शब बखैर। शब्बा खैर। ब्यूटी ने पहला दरवाजा खोला और एक खूबसूरत सजा हुआ कमरा देखा। वो बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसने अपना ड्रेसिंग का मेज उन तमाम चीजों से तैयार पाया जो वो कभी चाह सकती थी। उसने अपना खाना बड़े हॉल में पाया। खाने के बाद वो बड़े आराम से सोफे के कोने में बैठ गई। क्या ये वहशतनाक दरिंदा मुझे हमेशा के लिए कैदी बनाकर रखेगा? मैं अपने आप को कैसे आजाद कर सकती हूँ? बार बार इसके बारे में सोचते हुए वो फिर से गहरी नींद सो गई। ये शाम का वक्त था और उसने दरिंदे को आते हुए सुना। शाम बखैर ब्यूटी। शाम बखैर। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो ब्यूटी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ? हाँ या ना कहो बिना किसी खौफ के। ओ नहीं। जबकि तुम नहीं करोगी। शब बखैर ब्यूटी। शब्बा खैर। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके इनकार ने उसको गुस्सा नहीं दिलाया। हर शाम खाने के बाद दरिंदा उसको देखने के लिए आता और उसे शब बखैर कहने से पहले उससे पूछता, ब्यूटी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जब वो ये कहती ओ नहीं। वो बहुत उदास होकर लौट जाता। जो वक्त गुजरा, ब्यूटी ने बीच से डरना बंद कर दिया क्योंकि वो हमेशा उस पर बहुत मेहरबान होता था। महल में रहना ब्यूटी के लिए बहुत मजे की बात थी। वो खुद को बाग में बहुत खुश पाती। वहां पे फवारे थे, माल्टे के दरख्त थे, मेहंदी के दरख्त थे और परिंदे भी थे। यहाँ तक कि वो दरिंदा पांच दफा ब्यूटी के लिए पियानो बजाता और उसके साथ लंबी लंबी गुफ्तगू करता। तो सब कुछ इसी तरह तवील अरसे तक चलता रहा कि बिलाखिर ब्यूटी को अपने वालिद और बहनों की याद सताने लगी। उसको बहुत उदास देखकर दरिंदे ने उससे पूछा, क्या बात है प्यारी, तुम आजकल बहुत उदास दिखाई देती हो। मुझे अपने वालिद को देखने की बहुत चाहत है। मेहरबानी करके मुझे उन्हें देखने के लिए 1 हफ्ते के लिए जाने दें। मैं आपके पास वापस लौटने का वादा करती हूँ। ब्यूटी क्या तुम इसलिए भागना चाहती हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे नफरत नहीं करती। आपको छोड़ने पर मुझे अफसोस होगा। तुम जो कुछ भी मांगो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी क्यों ना देनी पड़े। अगर तुम सही वक्त पर ना आई तो तुम मुझे मरा हुआ पाओगी। ओ प्यारे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप हमेशा मुझ पर मेहरबान रहेंगे। तुम्हें सफर करने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं है। इस अंगूठी को पहनो और सो जाओ और डरो मत। आराम की नींद सो जाओ। जब तुम जागोगी तो अपने वालिद को देखोगी। ओह वाकई? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब तुम वापस आने की ख्वाहिश करो तो इस अंगूठी को अपनी उंगली में से निकाल देना और तुम अपने आप को वापस महल में पाओगी। शब बखैर ब्यूटी, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। शब्बा खैर प्यारे, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। बस अपना वादा याद रखना। जी जी जी, हाँ 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 हाँ। जैसे ही दरिंदा वहां से गया, ब्यूटी ने सोने की जल्दी की। अगली सुबह उसने खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। उसकी बहनें उसके जादुई तौर पर जाहिर होने पर हैरान हो गईं। वालिद ने उसको गले लगाया और खुशी से रोने लगा। ओ ब्यूटी, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था, तुम्हें कितना याद किया प्यारी। मैंने भी आपको याद किया अब्बू। ब्यूटी ने वालिद को दरिंदे की रहम दिली के बारे में बताया। कुछ सोच विचार के बाद उसने जवाब दिया, तुम मुझे खुद बताओ कि वो दरिंदा तुमसे बहुत प्यार करता है और अपनी रहम दिली और शफकत के लिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें उसकी तमन्नाएं पूरी करके उसको नवाज देना चाहिए। उसकी बदसूरती की परवाह न करो।
एक हफ्ता गुजर गया और ब्यूटी वापस महल लौटने के बारे में भूल गई। फिर एक रात उसने ख्वाब में देखा कि दरिंदा जमीन पे गिरा हुआ मर रहा है। हाँ, मेरे खुदाया। ब्यूटी इस ख्वाब से इतनी घबरा गई थी कि उसी शाम उसने अपने वालिद और बहनों को अलविदा कहा। जैसे ही वो बिस्तर में लेटी उसने अपनी अंगूठी उतारी, फिर वो फौरी तौर पर सो गई और सुबह को दरिंदे के महल में जागी। वो उस मकाम पर दौड़ती हुई गई जहां उसने दरिंदे को मरते हुए देखा था। दरिंदा वहीं पे था और ज्यादा हिल नहीं रहा था। ओ खुदाया, क्या ये वाकई मर चुका है? ये मेरा कसूर है कि आपको अकेला छोड़ा मेरे प्यारे। मगर तब उसकी तरफ देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो तो अभी सांस ले रहा है। वो फौरी तौर पर कुछ पानी लाई और उसके मुंह पर छिड़का और उसकी खुशी के लिए उसकी जान वापस लौटने लगी। ओह प्यारे, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मगर अभी जब मुझे डर लगा कि मैं आपकी जान नहीं बचा पाऊंगी। क्या तुम वाकई इतनी बदसूरत मखलूक से प्यार कर सकती हो जैसे कि मैं? जी, मैं देख सकती हूँ कि आपका दिल बहुत नरम और मेहरबान है, और इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकती हूँ जिंदगी में। ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी हाँ, मैं करूँगी। जो ही ब्यूटी ने ये बोला, दरिंदा अंधा कर देने वाली रोशनी में घिर गया और हवा में तैरने लगा। उसके बाद जब वो नीचे उतरा तो वो एक खूबसूरत शहजादा बन चुका था। ओह मेरे खुदा, आप तो मेरे ख्वाब के शहजादे हो। मैं हमेशा आप ही को ख्वाब में देखती हूँ। आह ब्यूटी, मेरी प्यारी ब्यूटी, मुझे इस खौफनाक बददुआ से आजाद करने का शुक्रिया। एक चुड़ैल जिसको मैंने एक मार्के में मारा था, उसने मुझको बददुआ दे दी मरते हुए। उसने मुझे बददुआ दी कि तुम्हें कोई नहीं प्यार करेगा और मुझे एक वहशतनाक दरिंदे में बदल डाला, मगर तुमने अपनी सच्ची मोहब्बत से इस बददुआ को तोड़ डाला। ओह मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? शहजादे ने उसको आराम से चुटकी काटी। आउच, ये ख्वाब नहीं है। आप मेरे हकीकी शहजादे हो, मेरी सच्ची मोहब्बत। अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे खानदान को हमारी शादी के रक्स के लिए तैयार करते हैं। तो उसने ऐसा ही किया और अगले दिन शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई। बिलाखिर रहमदिली हुस्न के ऊपर जीत गई। हुस्न सिर्फ खूबसूरत चेहरा रखने को नहीं कहते, खूबसूरत दिल, दिमाग और खूबसूरत रूह रखने को भी हुस्न कहते हैं। ब्यूटी और शहजादा उसके बाद हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।